Hello everyone, myself Raj Kumar and I am from Photon classes and that is in Anisabad, Colombo. Yes, so just I am present here to explain. This is the CBSE question, class 10th. Last day the question has given and I have set 2. I have set 2 question paper. Look at everyone. Question paper code set number 2. So just some of the students are just taking the question paper are very hard, but not you don't like this. You don't like it is question hard or don't say easy. Just it looks like moderate. Okay, so just you can see. So just look at without static the time. Yes. So question number 1. Look at everyone. Question number 1 in section A. First of all, we will discuss all the MCQ question. Okay. So this is question number 1. If PQ and PR are the tangent of the circle with center O and radius R such that QPR is 90. QPR. So this one is 90. So you have to calculate OP. So if you are calculating the value of OP, so OP is equal to 4 root 2. So this is for question number 1 answer. B is your correct answer. Okay. Now just we will forward question number 2. An ice cream cone of radius R and height h is completely filled of 2 spherical scoop of ice cream. If radius of each spherical scoop is R by 2, then what is the ratio of h ratio 2 by R equals? 2R equals. Okay. So just we are drawing the diagram. So this is your cone. And in the cone, it has given you the radius and height. This one is your radius and height is your given you height. And in the cone, it has given you 2 spherical scoop. That means 2 spherical scoop इस inverted cone में उठा करके डाला गया है. That means what? What you have to understand? Both the volumes are equal because spherical 2 scoops जो है उसी में से निकाल के आइसक्रीम को inverted cone में डाला गया है. So both the volume are equal. So just we will replace spherical looks like a spherical scoop. So volume of cone equal to 2 into volume of spherical. Okay. So how will you calculate? So volume of cone is what? 1 by 3 pi r square h. 1 by 3 pi r square and 2 into what is the volume of a spherical? कैसे निकालोगे? तो spherical scoop का what the given information? Radius of each spherical scoop. Look at everyone. Suppose that we are drawing a spherical. So this one is your radius. This one is your radius and radius is given you r by 2. So 4 by 3 pi r cube pi and into r cube and r के जगह पे कितना वैल्यू होगा? r by 2. So r by 2 the whole cube. So just you will solve. So pi it will be cancel out. 3 से 3 cancel हो जाएगा. Now what is the value of? So r square h. R square h equal to what? 2 4 जा 8. 8 into and r by 2 का whole cube वैल्यू क्या होगा? r cube upon 8. Okay. So 8 cancel out and r square cancel with power. So h equal to r. क्या हो जाएगा? h equal to r. तो रेडियस और हाइट दोनों इक्वल है. सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? h upon 2r. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h upon 2r? सो h upon 2r. दैट मीन्स h upon and 2 into r means h cancel out. So 1 ratio 2. So this is your correct answer for question number 2. This is your question number 2. Second ka B is your correct answer. Now question number 3rd. An arc PQ subtend an angle at the center Q. Radius is given you and length of arc is given you 11. So you have to calculate theta. So कैसे निकालोगे theta?
So length of an arc means what? 2 pi r theta, 2 pi r theta upon 360, and it is given you 11. So just you will substitute the value and you will calculate the value of theta. So 2 into value of pi 22 by 7 and r रेडियस कितना है 6.3 है. So 63 upon 10 and into 1 by 360 and into theta equal to 11. So 9 7 ja and then 9 2 ja 18 and 18 2 ja 36. Okay, so 11 2 ja, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा, इफ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा इक्वल टू 100 डिग्री. तो थीटा का वैल्यू 100 डिग्री हो जाएगा. डी इज योर करेक्ट आंसर. तीसरा क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए. वेरी सिंपल क्वेश्चन दिया है. क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, डायरेक्ट इट इज जस्ट अगर आपको आइडेंटिटी याद होगा तो विद इन अ सेकेंड आप बना सकते हो. तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए. सो सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 by cos स्क्वायर ए, 1 by cos स्क्वायर ए. ओके, and sec square cosec square a can be written as 1 upon sin square. Sin square will be upper side. So tan square a is your correct answer. Tan square a. तो who is your tan square? 4 का a. So question number 4 का आंसर क्या हो जाएगा? A. A is your correct answer. Okay. Now question number 5. 3 tennis balls are just packed in a cylinder jar. If radius of the each radius is r, so volume of air inside the jar. तो मतलब एक सिलेंड्रिकल जार है और उसके अंदर में 3 स्फेरिकल बॉल इंटर किया गया है और वो स्फेरिकल का रेडियस कितना दिया हुआ है? r दिया हुआ है. तो यू हैव टू कैलकुलेट, क्या निकालना है? इफ द रेडियस ऑफ द वॉल्यूम, सो इनसाइड द, यस, सो आपको क्या करना होगा? अगर आप रेडियस निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्फेरिकल है, so this one is your spherical. Okay, so what is the radius? Radius of each wall is r, so this one is your r, so this is also r, so 2r plus 2r plus 2r. So what is the total height of the cylinder? 2r 2r 2r, so 6r, so 6r is your height. Okay, and what is your ये, so if you are calculating, so just आप कर सकते हो, इसमें कैसे कर सकते हो? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल. सो इफ यू आर कैलकुलेटिंग, हमने सॉल्व किया है, तो 6 माइनस 4 दैट मींस 2 पाई आर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर आपका हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 का ए इज योर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में क्या कर रहा है? 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, दैट मींस 2 डाइस को एक साथ रोल्ड किया गया. तो द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ऑब्टेन नंबर्स आर लेस देन 4, मतलब जो दोनों जो डाइस है उस पे 4 से कम होना चाहिए. सो आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 डाइस को एक साथ रोल्ड करोगे तो टोटल पॉसिबिलिटी आउटकम्स कितना होगा? 1 2 1 1 1 1 2 1 3, इस तरह से डॉट 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 1 6. सिमिलरली अगर 2 1 2 2 2 3 डॉट 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 2 6, सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 डॉट 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 3 6. सिमिलरली 4 1 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा? 4 6 तक. उसके बाद 5 1 से स्टार्ट होकर के कहां तक जाएगा? 5 6 तक. और लास्ट 6 1 से स्टार्ट होकर के कहां तक जाएगा? 6 6 तक जाएगा. ओके, सो आप देख लो, 4 से कम तो कौन कौन होगा? 1 2 3 1 4 तो नहीं होगा, तो 3 4 5 6 7 8 एंड 9. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? 9. सो 9 अपॉन, एंड टोटल जब 2 डाइस को आप रोल्ड थ्रोन करोगे तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 36. सो इट विल बी इक्वल टू 1/4. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? सी इज योर करेक्ट आंसर. ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी, 6 का सी। नाउ 7, ABCD is a parallelogram such that AF, EF एंड BF आर गिवन यू। तो आपको क्या निकालना है, DF का वैल्यू। देखो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी क्लास में कराया हुआ है। एक ABCD पैरेललोग्राम है। सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम? देयर डायगोनल रेशियो ऑफ डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो क्या लिख सकते हो यहां से, AF अपॉन EF, AF अपॉन EF इक्वल टू DF अपॉन BF। बस वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो AF कितना है, 7। सो 7 अपॉन 4 इक्वल टू DF तो आपको निकालना है, तो DF, और BF का वैल्यू कितना है, 3 है। सो यहां से DF का वैल्यू कितना आ जाएगा, 21/4, 21/4। तो कौन सा आंसर होगा, A इज योर करेक्ट आंसर। तो 7 का A आपका आंसर करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, PQ इज अ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, POR 65। तो मेजरमेंट ऑफ PTR आपसे पूछ रहा है, ये एंगल PTR पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे? देखो अगर आपके पास डेप्थ है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे सर बता रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किसी तरह से अप्रोच कर सकते हो। सपोज दैट जस्ट मुझे अचानक याद आया 9th क्लास का कॉन्सेप्ट। और क्या है कॉन्सेप्ट? पहले क्या करो, P से R को ज्वाइन कर लो। ओके, सो देयर वाज अ थ्योरम इन 9th क्लास इन द सर्कल, same segment makes an angle at the center 65 and the same segment makes at the circumference, तो just सेंटर का circumference का एंगल हाफ हो जाता है। तो यहां 65 है सेंटर पे, तो यहां पे कितना एंगल हो जाएगा, 65/2, 65/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 32.5। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, ये आपको पता है कि ये टेंजेंट है, तो यहां पे ये 90 डिग्री बनाएगा OPT। तो PST ट्रायंगल में प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई कर लो। तो एंगल P प्लस एंगल S एंड प्लस एंगल STP या PTR भी लिख सकते हो। तो एंगल PTR इक्वल टू 180। तो यहां से सॉल्व कर लो। तो एंगल P कितना आया, एंगल P 90 है। सो 90 प्लस एंगल S अभी हम लोग निकाले हैं 32.5 एंड प्लस एंगल PTR तो आपको निकालना है, इक्वल टू 180। तो यहां से निकाल लो। तो एंगल PTR कितना हो जाएगा, सो 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, तो 90, और 90 में से 32.5 भी माइनस करना है। तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, एंगल PTR कितना आंसर हो जाएगा आपका, 0.5 एंड 89, 32, तो 57। सो 57.5 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। तो 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ए सर्कल सेंटर -1/2 पासेस थ्रू द पॉइंट 03। तो आपको रेडियस निकालना है। मान लो एक सर्कल ड्रॉ कर लो पहले, ये रहा मेरा सर्कल। सर्कल का क्या दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है। चलो यहां पे सेंटर प्लॉट कर लो, -1 और 2। और ये जो सर्कल है वो एक कहीं भी पॉइंट है जो 03 से पास करता है। मान लो कि ये वैल्यू आपका 03 है, तो जस्ट इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एक काम करो, इस सेंटर है तो ओ ले लो, इसको ए मान लो। तो आपको OA का डिस्टेंस निकालना है। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर एंड प्लस 3 - 2 मतलब 1 का स्क्वायर। सो √2। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 का B इज योर करेक्ट आंसर। ओके, 9। नेक्स्ट एंड द लास्ट फ्रॉम दिस शीट, क्वेश्चन नंबर 10। इट इज गिवन दैट ABC एंड EDF विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है। ओके, सो आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम होते हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ EDF इक्वल टू AB अपॉन ED, ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट, AB अपॉन ED इक्वल टू AC अपॉन EF, ये भी सही है। एंगल A इक्वल टू D और C बराबर F, नहीं, ये गलत है। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा नहीं है। बहुत सारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती कर बैठा है। इसमें आपको गलत पूछ रहा है, कौन सा सत्य नहीं है।
बाकी जो तीन इसका ऑप्शन है वो सही है, ये गलत है और गलत ही आपसे पूछ रहा था, तो मतलब 10 का सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ऑलरेडी क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। देखो एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और यहां से k का वैल्यू पूछ रहा है और आपका d जो है वो रियल एंड इक्वल है। तो रियल एंड इक्वल के लिए आपको पता है कि क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर, बी कितना है -k√3, तो -k√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए एंड सी। ए कितना है देखो यहां 1 है और सी कितना है, सी है 2 इक्वल टू 0। तो यहां से k का वैल्यू निकाल लो, तो यहां से कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहां से k स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/3। सो k इक्वल टू वॉट, स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट अंडर, सो 8/3। सो k का वैल्यू रूट अंडर 8/3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही होगा, तो क्वेश्चन नंबर बी 11 का बी आपका सही हो जाएगा। ओके नाउ अब देखो ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स का ही है, बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया है। देखो ये जो ग्राफ है वो एक्सिस एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। सो आपका इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये सेट 2 का क्वेश्चन है, बट अगर आप सेट 3 में जाओगे तो उसमें ये ग्राफ को 4 बार टच करवा दिया है, तो उसमें 4 आपका आंसर नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। सेट 1 के क्वेश्चन हमने देखा है, सेट 1 में आपको 2 बार ग्राफ टच करवा दिया है, तो इसीलिए उसमें नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएगा। मतलब अगर ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितने बार कट करेगा वो आपका नंबर ऑफ जीरो होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये देखो हमने बताया था आपको मीन मीडियन मोड में कि एक क्वेश्चन इंपेरिकल फॉर्मूला से 100% बनेगा। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मोड इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन। ओके, तो बस वैल्यू निकाल लो। तो 3 इंटू मीडियन कितना दिया हुआ है 40, तो 3 इंटू 40 एंड माइनस 2 इंटू मीन है 43, तो कितना आ जाएगा 120 माइनस 86, तो 4 एंड 3, तो 34 इज योर करेक्ट आंसर। 34 कहां है, ए नंबर, तो 13 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, रेडियस दिया हुआ है और एरिया ऑफ सेक्टर भी दिया हुआ है, तो आपको सेंट्रल एंगल निकालना है। तो बहुत आसान है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 198। ठीक है, वैल्यू निकाल लो, यहां से वैल्यू पुट कर लो और यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लो। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 18 है, तो 18 इंटू 18 और थीटा तो मुझे निकालना है अपॉन 360 आई इक्वल टू 198। तो देखो तो इफ यू विल डिवाइड बाई 9 तो 9 2 जा, इफ यू विल डिवाइड बाई 9 सो 9 2 जा एंड 9 2 जा 18 ऑल्सो। ओके नाउ 22 22 कैंसल आउट, सो 18 2 जा 36, सो 10 टाइम्स। So what is the value of theta? Theta equal to 10 7 जा 70 डिग्री, तो 70 डिग्री थीटा का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ए करेक्ट आंसर होगा। नाउ ये देखो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, फर्स्ट टॉपिक रेशियो से। इफ 2 tan a इक्वल टू 3, तो आपको sec a का वैल्यू निकालना है। तो tan a इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan a इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो tan a मीन्स व्हाट, p/b। ओके, तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस 2 है, तो पहले क्या करोगे हाइपोटेनस निकाल लो। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सो 3 3 जा 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड ओवरऑल रूट, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा रूट अंडर 13। तो आपको क्या पूछ रहा है सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए इक्वल टू h/b, h/b, तो h कितना है, h हमारा रूट 13 है और b कितना है, b हमारा दिया हुआ था 2, तो रूट 13/2 इज योर करेक्ट आंसर। देखो आंसर जो ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन दिया है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे दिया है, थोड़ा सा भी अगर केयर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज योर करेक्ट आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर, रूट 13/2। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है।
सब क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन करवाया हुआ है। देखो यहां पे इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इनकंसिस्टेंट के लिए के का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट के लिए आपको कंडीशन तो पता ही है, क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो पहले क्या करोगे, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। तो एलसीएम ले लो पहले, तो 3 टू एलसीएम 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो यहां से 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 5 30। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है 2x प्लस ky इक्वल टू 7। तो बस इस जो रूल्स है उस पर वैल्यू पुट कर लो। तो a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 कितना हुआ 3/2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो 2 अपॉन k, एंड इधर हो जाएगा 30 अपॉन 7 इज नॉट इक्वल टू। तो यहां से k का वैल्यू कितना हो जाएगा 3k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू 4/3। तो k का वैल्यू 4/3 इज योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया है। इन एन एपी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -3 और S17 का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपसे A17 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। सो S17 का वैल्यू दिया हुआ है 357। तो S17, तो Sn का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ओके, एंड इक्वल टू Sn, और S17 का वैल्यू 357 है। चलो तो बस n का वैल्यू पुट करो, तो 357 इक्वल टू n का वैल्यू 17 है, तो 17/2 इंटू 2a, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, तो -3 इंटू 2 मतलब -6, एंड प्लस n का वैल्यू कितना है 17, 17 माइनस 1 16, 16 इंटू d, तो d, तो 16 इंटू d, तो d आपको तो निकालना है, तो 16d रहने दो, 16d। तो यहां से d का वैल्यू पहले निकाल लो, तो देखो तो ये डायरेक्ट कैंसिल होगा क्या, 17 से 357, 17 2 जा 34, कैरी 1 एंड 1 7, दैट मीन्स 1 टाइम, 21 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 16d एंड -6 इक्वल टू 42। तो यहां से d का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -6 उधर गया तो 48 अपॉन 16, मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया 3। तो आपसे क्या पूछ रहा है A17 का वैल्यू, तो A17 को हम लोग क्या लिखेंगे, A17 मतलब एक कम मतलब कितना a प्लस 16d। बस a और d का वैल्यू पुट कर लो, तो a का वैल्यू कितना था -3 एंड प्लस 16 इंटू डी का वैल्यू आया है 3, सो -3 प्लस 48, तो आंसर कितना हो जाएगा 45 इज योर करेक्ट आंसर। 45 किसमें है 17 का, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन फिगर ए सर्कल इज सेंटर एट 1 2, मतलब एक सर्कल में सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 एंड 2, एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल आपसे पूछ रहा है। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो एक काम करो, इसमें इसको मान लो x, अगर इसको x मान लो तो देखो तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x और 0, ठीक है। आप किसी भी तरीके से बनाओ, अगर आप राइट डायरेक्शन में जाओगे तो आप आराम से बना सकते हो। अगर मान लो ये y डिस्टेंस को हम y मान लें, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 और y, ठीक है। तो आप क्या करो, ये देखो तो ये डायमीटर है, तो डायमीटर में सेंटर जो हमारा होता है वो मिड पॉइंट होता है, तो बस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के x और y पहले निकाल लो। तो कितना हो जाएगा x1 प्लस x2/2, मतलब x प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। उसी तरह से अगर y प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू 2, तो यहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो x और y दोनों हम लोग निकाल चुके हैं। तो जब x और y निकल गया तो आपको ये डायमीटर है और डायमीटर का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो आपका ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 और y का वैल्यू कितना है 4, तो 0 4 हुआ, और x0 मतलब 2 0। तो बस ये दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा दो, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 0 मतलब 2 2 जा 4 प्लस
4 minus 0, so 16 and overall root. So root under 20, और root under 20 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 5 into 4, और 4 is outside the square root value, so 2 root 15. तो 2 root 15 आपका डायमीटर आ जाएगा. तो 2 root 15 कहाँ है 18 का D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके चलो लास्ट दो क्वेश्चन असर्शन रीजन में है. ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, रूट 3 असर्शन में कह रहा है कि रूट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. ओके इट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज रूट 3 प्लस रूट 5 तो इरेशनल होता है. तो ये तो आपका असर्शन करेक्ट है. रीजन में क्या दिया है, सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल. नो 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 नो, इट यू कांट से ऑलवेज. हमेशा इरेशनल, दो इरेशनल का सम इरेशनल नहीं होता है. हाँ कभी कभी होता है, नहीं भी होता है. अभी देखो क्यों नहीं होता है, तो देखो मान लो कि रूट 2 है और इसमें माइनस रूट 2 को हम ऐड कर लेंगे. देखो ये रिजल्ट 0 आ रहा है, ये इरेशनल तो हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए ऑलवेज नहीं होता है. तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो असर्शन सही है और रीजन गलत है. तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इज योर करेक्ट आंसर. तो 19 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. And the last question from section A, if probability of an happening of an event is 0.2 p, where p is greater than 0, then p can't be more than 5. मतलब कह रहा है कि यहां से p का जो वैल्यू होगा वो 5 से बड़ा नहीं हो सकता है. एक काम करते हैं, 5 से बड़ा वैल्यू लेके देख लो. तो 0.2 एंड इंटू p का वैल्यू अगर हम 6 ले लेंगे तो 0.2 इंटू 6, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1.2. और आपको पता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो होता है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है. तो p का वैल्यू ग्रेटर देन 5 तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि असर्शन जो है वो करेक्ट है. ठीक है, अब रीजन में क्या दिया है कि p नॉट इक्वल टू 1 माइनस p, ये भी सही है, क्योंकि एक फॉर्मूला तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, ये दोनों का वैल्यू 1 के बराबर होता है. तो यहां से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट इवेंट निकालोगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा. तो इसका मतलब हुआ कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और दोनों एक दूसरा का सेटिस्फाई भी कर रहा है. तो दैट मींस ए इज योर करेक्ट आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है. देखो सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी में आप अगर अप्रोच करोगे तो सेक्शन बी तो बहुत आसान था. सेक्शन बी में देखो कितना आसान है, प्रूव दैट 2 + 3 √ 5 इज एन इरेशनल. एक काम करते हैं, पहले सेक्शन ई की ओर चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का क्या नाम था कि सर सेक्शन ई और सेक्शन डी जो है वो बहुत हार्ड पूछ दिया है. बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल किया है. मतलब क्वेश्चन को आप इजी भी नहीं कह सकते हो, आप हार्ड भी नहीं कह सकते हो, बट इट यू कैन से मॉडरेट ऑल्सो. ये देखो पहले केस स्टडी बेस ही कर लेते हैं. ठीक है, केस स्टडी बेस देखो यहां से स्टार्ट है. क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई में 36 है. क्या कह रहा है, कोलम इज अ डेकोरेट एट अ विच इज मेड ऑफ राइस फ्लोर इन द साउथ इंडियन स्टेट्स. इट इज ड्रॉन ऑन ग्रिड पैटर्न ऑफ डॉट्स. ओके, one such art work in below, so observe the given below carefully. 4 dots in first square, मतलब पहले वाला जो स्क्वायर आपको दिख रहा है डायग्राम में, इसमें 4 डॉट्स है. देखो यहां 4 डॉट्स है, 1 2 3 एंड 4. उसी तरह से कह रहा है कि 8 डॉट्स इन सेकेंड स्क्वायर, मतलब जो उसके बाहर वाला ये स्क्वायर है इसमें 8 डॉट्स है. देखो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8. मतलब आपको क्वेश्चन में अगर अच्छे से आप रीड कर पाओगे तो आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, बना सकते हो. कैसे, तो देखो आपसे कह रहा है कि पहले वाले स्क्वायर में 4 डॉट है, दूसरे वाले स्क्वायर में 8 डॉट्स है, तीसरे वाले स्क्वायर में 12 डॉट्स है. तो इसी तरह से आपको इंक्रीज करते जा रहा है डायग्राम. तो आपको शो करना है कि नंबर ऑफ डॉट्स गिवन एवं फॉर्म एन एपी एंड राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. तो देखो पहला स्क्वायर जो था उसमें 4 डॉट्स था, दूसरा में 8, तीसरा में 12 एज सो ऑन. तो देखो तो आपको एपी में शो करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर मान लो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. तो देख लो करके 8 - 4
इट इज ऑल्सो इक्वल टू 12 माइनस 4। तो दोनों 4 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस में है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या करा था कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो। तो फर्स्ट टर्म तो तुम्हारा 4 ही हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। तो आपका क्वेश्चन नंबर ए का तुम्हारा सही आंसर यही होगा 36 का फर्स्ट। अब दूसरा में क्या कर रहा है, राइट nth टर्म ऑफ एन एपी। तो इसका nth टर्म पूछ रहा है। तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आपको nth टर्म का पूछ रहा है वैल्यू, तो मतलब a और d का वैल्यू पुट कर लो। तो a का वैल्यू 4 है और n माइनस 1 एंड इंटू डी का वैल्यू भी 4 है। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4n माइनस 4। 4 प्लस माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। तो nth का वैल्यू 4n, द वैल्यू ऑफ nth टर्म विल बी 4n। तो ये तुम्हारा सेकेंड पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। और थर्ड नंबर में क्या कर रहा है, द पैटर्न इज एक्सपेंडेड ऑन ए लार्ज ग्राउंड इफ द टोटल 220 डॉट्स आर यूज्ड देन फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म। मतलब द वैल्यू ऑफ एसएन इज गिवन यू, मतलब ये एसएन का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 220। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एन का वैल्यू पूछ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो बस यहां से एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो एसएन इक्वल टू क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एसएन का वैल्यू तो आपके पास दिया हुआ है 220 इक्वल टू n का वैल्यू तो मुझे निकालना है, तो n बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a में हम लोग 4 निकाल चुके हैं, तो 4 2 जा 8 एंड प्लस n माइनस 1 एंड इंटू डी भी 4 ही है। बस इसको सॉल्व करके n का वैल्यू निकाल लो। इसको क्रॉस कर लेते हैं, तो 440 इक्वल टू n इंटू ये कितना हो जाएगा 4n एंड माइनस 4 प्लस 4, मतलब 4n प्लस 4, 4n प्लस 4 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक में ट्रांसफर कर लो। तो n को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n, और इसको उधर लेके चले जाओगे तो माइनस 440 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक काम करो, तीनों में से पहले कॉमन लेके हटा दो, तो 4 कॉमन तो मिल रहा है, तो n स्क्वायर प्लस n एंड माइनस 110 इक्वल टू 0। अभी देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यहां से इसको फैक्टराइज करो, स्प्लिट करो, जो इच्छा है जैसे करो, आपको यहां से n का वैल्यू निकालना है। तो सबसे आसान क्या रहेगा, स्प्लिटिंग करना आसान रहेगा। 11 और 10 2 फैक्टर इसमें आपको मिल रहा है, तो आप इसको ब्रेक कर लो। तो n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 10n एंड माइनस 110 इक्वल टू 0। तो यहां से इफ यू विल टेक योर कॉमन, सो क्या हो जाएगा 2 फैक्टर, एक हो जाएगा n प्लस 11 और एक n माइनस 10। तो मतलब प्लस माइनस 11 तो नहीं हो सकता है, तो n का वैल्यू 10 आपको करेक्ट आंसर देगा। मतलब n मतलब नंबर ऑफ डॉट्स कितना रहेगा 10। तो थर्ड नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसमें एक लास्ट पार्ट और है, आप इसको कैसे बना सकते हो, इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट n नंबर ऑफ स्क्वायर यूजिंग 100 डॉट्स, इफ यस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कुछ नहीं करना है, इसमें भी वही काम करना है, आपको n का वैल्यू 100 डॉट लेकर के एसएन का वैल्यू 100 डॉट लेकर के यहां से n का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, चलो लास्ट 37 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, इसमें देखो, अब देखने में डायग्राम थोड़ा सा आपको डरावना लग रहा है, बट अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर पाओगे तो आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। कैसे बना सकते थे, देखो क्या है क्वेश्चन में ये डायग्राम है और कह रहा है ऑब्जर्व द मैप जयपुर सिटी प्लेस्ड ऑन ए सर्टेन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन टेकिंग रामबाग प्लेस एट ओरिजिन। रामबाग जो है वो आपको ओरिजिन ले लेना है। मतलब ये हुआ कि ओरिजिन भी एक कोऑर्डिनेट है जिसका आपको पता है कि उसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, और 4 कोऑर्डिनेट आपको इस डायग्राम में दिया हुआ है ABCD, चारों का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एडवोकेट रेहाना से द हीराबाग, हाउ मच डिस्टेंस शी हैज टू कवर डेली टू गो द कोर्ट एंड कमिंग बैक होम। मतलब आपको अपने घर से कोर्ट का डिस्टेंस और वहां से आने जाने, मतलब दोनों का डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब जाना और आना दोनों। तो मतलब A और C का डिस्टेंस निकाल लो, तो AC का डिस्टेंस निकाल लो। तो x2 माइनस x, देखो A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 2 और C का है 4 3, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 मतलब 8 का स्क्वायर, तो 64 प्लस ये हो जाएगा C3 माइनस 2 मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो मतलब रूट अंडर 65 हो जाएगा, रूट अंडर 65। तो ये तो सिर्फ कोड से
घर का डिस्टेंस हुआ तो आना जाना दोनों टाइम्स, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2√65। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट क्या है, देयर इज अ क्रॉसिंग ऑन एक्स एक्सिस विच डिवाइड्स एडी इन अ सर्टेन रेशियो, फाइंड द रेशियो। मतलब कह रहा है कि कोई एक एडी लाइन है और ए और डी दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो अगर मान लो कि ये है एडी हमारा, ए और डी, और इसको एक एक्स एक्सिस का पॉइंट एक्सिस से ये इंटरसेक्ट करता है, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है -4 2, और डी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -5 और -2। अब मान लो कि यहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो इसका क्या हो जाएगा x और 0। तो इसको मान लो ये m है और ये n रेशियो है, तो आपको रेशियो आपको यहां से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एन सर्टेन रेशियो, फाइंड द रेशियो। ठीक है, तो निकाल लो। तो देखो ये 0 है, तो मतलब क्या हो जाएगा फॉर्मूला my2, तो y2 मीन्स -2, तो -2 इंटू एम, सो -2m एंड प्लस ny1, तो हो जाएगा यहां +2n अपॉन m प्लस n इक्वल टू 0। वाई डिस्टेंस कितना है 0 है, तो यहां से क्रॉस करोगे तो कितना आ जाएगा -2m इक्वल टू -2n, तो माइनस माइनस कैंसल, 2 से 2 कैंसल, मतलब m और n दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि दोनों का जो रेशियो होगा m/n का, वो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो सेकेंड पार्ट का जो आंसर होगा वो m रेशियो n का रेशियो जो होगा वो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है, इज बिरला मंदिर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम हीरा बाग एंड अमर जवान ज्योति, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब जो हीरा बाग और अमर जवान है वो दोनों का मीड पॉइंट आपको इक्वी डिस्टेंस कह रहा है, मतलब दोनों का डिस्टेंस अगर इक्वल आप करोगे, हमने सॉल्व किया है इसको, तो ये इक्वी डिस्टेंस नहीं होता है, मतलब इसका आंसर नो हो जाएगा। ठीक है, बट यू हैव टू शो ऑल्सो, आपको डायरेक्ट नो नहीं लिखना है क्योंकि इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको दिखाना है कि दोनों का डिस्टेंस जो है वो बराबर नहीं होगा। और लास्ट पार्ट इसका है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सो दैट ए ओ बी आर नॉट अ कोलिनियर। तो मतलब आपको यहां से इसमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके आपको बताना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो और स्लोप ऑफ एओ निकालोगे, ये दोनों मतलब दोनों इक्वल नहीं होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए बी दोनों को नॉट इक्वल होगा, स्लोप ऑफ ओ ए, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो ये आपका इस वाला पार्ट का सॉल्यूशन होगा। और लास्ट इसका सॉल्यूशन क्या है, 38 नंबर लास्ट। इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक कैरम बोर्ड इज वेरी पॉपुलर गेम, द बोर्ड इज ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65, मतलब ये स्क्वायर का लेंथ, साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन यू 65। ओके, इट है सर्कुलर पॉकेट्स इन ईच कॉर्नर, मतलब आपको पता है कैरम बोर्ड में जो चारों वर्टेक्स होता है, जो कॉर्नर होता है वहां पे 4 सर्कल शेप में बना होता है। तो एज स्टिक एज केप द पी, तो ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पीआरटी और सीआरटी इक्वल हो जाएगा, तो थीटा और अल्फा को प्रूफ करना है कि इक्वल है। हाँ, कैसे बनाओगे, ये तो आसान है। इसमें आप फिजिक्स में एक लॉ तो पढ़े हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा। और सो यहां से ये और ये ऑलरेडी 90 है और ये 90 है, तो यहां से करस्पॉन्डिंग एंगल से आप इसको थीटा और अल्फा इक्वल, मतलब थीटा और अल्फा इक्वल आपको बस हो गया। दूसरा में क्या कर रहा है, पी क्यू आर और सी बी आर, ये दोनों गिवन दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा, मतलब पी क्यू आर जो है वो सी बी आर पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू आर, वेरी जार पी क्यू आर, और सी आर टी, ये दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है। हाँ, तो ठीक तो है, ये तो भी तो हो ही रहा है क्योंकि ये नॉर्मल है और ये भी 90 डिग्री है, तो स्क्वायर का साइड 90 डिग्री ही होता है, तो आपका दोनों 90 है, तो यहां से आप परपेंडिकुलर कह सकते हो। और तीसरा में क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल।
तो x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो x का वैल्यू बस सिमिलर, यहां से ट्रायंगल दोनों का सिमिलर कर दो। तो एंगल दोनों में एक एक 90-90 मिल रहा है और एक एक अभी थीटा इक्वल टू अल्फा हम लोग प्रूफ किए हैं तीसरा नंबर फर्स्ट नंबर में। तो बाई एंगल से आप यहां से निकाल सकते हो। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो यहां से साइड का स्क्वायर का रेशियो भी प्रोपोर्शनल हम लोग कर सकते हैं। तो वहां से बी नंबर भी आप लोग निकाल सकते हो। ओके, नाउ so this is the complete section 4 मतलब लास्ट सेक्शन आपका है। बहुत सारा जो स्टूडेंट थे वो ऑब्जेक्टिव के बाद सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में वो थे सेक्शन ई के लिए कि सर आपने तो बताया था कि पहले सेक्शन ई स्टार्ट करना, फिर सेक्शन डी शुरू करना, फिर सेक्शन सी बी, उसके बाद सेक्शन ए करना। बट सर स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा प्रेशर, वो थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा घुमाया क्वेश्चन में, तो इसीलिए थोड़ा फ्रस्ट्रेट किए। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपके लेवल में ही है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को आप मॉडरेट कह सकते हो। चलो देखते हैं सेक्शन डी में क्या करते हैं। सेक्शन डी में क्या कह रहा है देखो। सेक्शन बी तो ओवर हो गया, सेक्शन ई तो खत्म हो गया, सेक्शन डी एक ओके। सो दिस इज सेक्शन डी। तो ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground level. Ravi is standing at the roof of the house. He is holding the string straight and observe the angle of elevation is of kite is 30 degree. Okay, from the bottom of the same building, the angle of elevation of a kite is 45. तो find the length of a string and height of the roof from the ground. तो आप यहां से इसको बना सकते हो। ये आपका ग्राउंड हो गया, मान लो कि ये h डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये भी h हो जाएगा। तो टोटल ये लेंथ दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है। तो यहां से ये एंगल आपके पास दिया हुआ है और ये एंगल है भी दिया हुआ है। तो ये एंगल है 45 और ये एंगल है 30, ठीक है। सो पहले क्या करेंगे, पहले ये लेंथ निकाल लो। तो ये हो जाएगा 60 माइनस h, ठीक है। तो पहले ये वाला ट्रायंगल में निकाल लो, ये वाला ट्रायंगल। अच्छा एक काम करते हैं, इसको x मान लो। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल में अगर चलेंगे तो कौन सा, इसमें tan 45 लगा लो। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, p बाई बी। तो p है 60 और ये है x, सो 45 1, तो मतलब x का वैल्यू 60 आ जाएगा, x का वैल्यू 60। तो ये वैल्यू आपका 60 हो गया, ठीक है। तो आप यहां से पहले क्या करोगे, अब इस ट्रायंगल में चलो। तो इस ट्रायंगल के लिए क्या करोगे, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो बेस तो हमारा 60 ऑलरेडी, ये जो 60 है वो भी तो 60 ही होगा ही लेंथ। तो ये 60 हम लोग निकाल चुके हैं। तो इस ट्रायंगल में भी उसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। तो tan 30 निकाल दो। तो 60 ये परपेंडिकुलर कितना है, 60 माइनस h, और ये आपका बेस है 60। अब यहां से tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, आपको पता है, और 60 माइनस h अपॉन 60। अब यहां से √3 का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.73, ठीक है। तो जस्ट यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू √3 1.73 एंड देन यू विल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो तुम्हारा h का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो 32 नंबर देखो कितना आसान था। चलो क्वेश्चन नंबर 33 अगर आप बनाओगे तो मीन और मोड निकालना है, इजी है। तो आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो आपको मीन और मोड निकालना है। तो कैसे निकालोगे, दोनों आसान है, या तो आप 33 का ए बना लो या बी बना लो। अगर मान लो 33 का ए बनाना चाहते हो तो देखो, अगर इफ यू वांट टू अप्लाई डायरेक्ट मेथड आल्सो, बट डायरेक्ट मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लेंदी हो जाएगा। तो आप आइदर यू विल अप्लाई एज्यूमेंट मेथड और स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, स्टेप डेविएशन का मीन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या होता है, कैपिटल ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, यही होता है फॉर्मूला। तो एक काम करो, पहले इस टेबल को थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल, ये है तुम्हारा क्लास इंटरवल, ये है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एक कॉलम बनाना पड़ेगा आपको एक्सआई का, और उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा, डी आई। और डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एंड द लास्ट कॉलम आपको बनाना पड़ेगा एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। तो क्लास इंटरवल आपके पास दिया हुआ है, कितना कितना है देख लो, 5 15, उसके बाद 15 25, 25 टू 35, 35 टू 45,
45 to 55 हो गया, और 55 to 65. According to class interval, frequency are given you 11, 20, 25. 11, 20, 25. उसके बाद 22, 12 और 10. तो ये क्लास फ्रीक्वेंसी है. तो पहले क्लास मार्क निकाल लो. तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2. सो 5 प्लस 15 मतलब 20. 20 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा 10. उसी तरह से 25 प्लस 15 40. 40 बाई 2 मतलब 20. तो इस तरह से आप 10 ऐड करते चलो तो 40, 50, 60. ठीक है. चलो आप डी निकाल लो. तो डी के लिए क्या करेंगे, पहले ए को सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो ए कितना होगा इसमें, आइदर ए का वैल्यू 30 ले लो या 40 ले लो. चलो हम कैपिटल ए कितना ले रहा है 40. तो एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई कितना है 10. 10 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा -30. ये कितना हो जाएगा -20. ये हो जाएगा -10. ये हो जाएगा 0. ये हो जाएगा 10. ये हो जाएगा 20. ठीक है. तो उस तरह से अब एफ आई इंटू डी आई, ये दोनों का वैल्यू मल्टीप्लीकेशन करके यहां निकालते चले जाना और उसके बाद सबको ऐड कर देना. तो ये समेशन एफ आई डी आई का वैल्यू हो जाएगा. और यहां से मीन का फॉर्मूला इस फॉर्मूला पे पुट कर लेना, वहां से इसका मीन निकल जाएगा. ठीक है. अच्छा, मोड कैसे निकालोगे, मोड का फॉर्मूला क्या होता है. तो मोड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मोड का फॉर्मूला बताओ कोई. तो एल प्लस यहां होता है एल प्लस F1 माइनस FO अपॉन, जस्ट होल्ड डाउन, सेकेंड क्या हुआ, जस्ट होल्ड डाउन. यस. सो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, सेक्शन डी का बना रहे थे ना, सेक्शन डी का. यस. तो ये बना रहे थे. तो सेक्शन डी में यही क्वेश्चन बना रहे थे. तो मोड का फॉर्मूला अप्लाई करके और यहां से वैल्यू रख देना. तो फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO एंड माइनस F2. और तुम्हारा ये होता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, तो फ्रीक्वेंसी में इसमें क्या दिया हुआ था, मोड. सो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन हो रहा है 25. तो तुम्हारा क्लास इंटरवल कौन सा बनेगा 25 टू 35. तो लोअर लिमिट आपका मॉडल क्लास का लोअर लिमिट हो जाएगा और उसके बाद यही आपका फ्रीक्वेंसी वैल्यू F1 होगा और ये होता है F0 और इसके आगे वाला फ्रीक्वेंसी के आगे वाला वैल्यू होता है आपका F2. बस वैल्यू निकाल कर पुट करके यहां से निकाल लेना आंसर. ओके. चलो आगे बढ़ो. नेक्स्ट, a person on tour has 5400 for his expense if he extended. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. ओके. तो जस्ट एक सेकंड रुक जाओ. देखो इसमें आपको क्या क्वेश्चन में दे रहा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो. ये तो ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में करवाया हुआ है. डायरेक्ट क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में भी है, आर एस अग्रवाल में भी है. आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, बस आप देख लो कैसे बनाओगे. तो ए पर्सन 2400, ओके. सो इफ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 5 days by 5 days, ओके. सो ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंस बाय 180 रुपीज. तो आपसे क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर एंड डेली एक्सपेंसेस. तो अगर मान लो डेली एक्सपेंसेस को x मान लो और ओरिजिनल ड्यूरेशन को y मान लो, तो स्टार्टिंग में इक्वेशन क्या बनेगा, x इंटू वाई बराबर 5400. तो ये पहला इक्वेशन हो जाएगा. और दूसरा इक्वेशन में क्या कह रहा है कि अगर ओरिजिनल डेली एक्सपेंस अगर x मानते हैं तो डेली एक्सपेंस जो है 180 रुपीज हैज टू कट डाउन. तो इसका मतलब हुआ कि x माइनस 80
x माइनस 180 एंड इनटू y जो है वो टू बाई 5 में, मतलब 5 दिन बढ़ जाता है तो y प्लस 5, और ये आपका इक्वल हो जाता है 5400 के। तो बस यहां से सॉल्व कर लो। आइदर यू विल सब्स्टिट्यूट द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहां से x या y निकाल लो और y निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर लो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और फिर उसको स्प्लिट कर देना, वहां से आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन डी, ये क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आसान है। एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो सर्कल है, आप इसको कैसे अप्रोच करोगे? इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेम द क्वाड्रिलेटरल एम क्यू बी एन। तो एम क्यू बी एन, ओके। तो ये देखो, तो ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट है, तो ये 90 90 है, ऊपर वाला भी 90 90 है, तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल तो है। इज एम एन पैरेलल टू पी ए, एम एन पैरेलल टू पी ए, यस, बिकॉज ये टेंजेंट है, तो ये ऊपर 90 है, तो यहां सेंटर पे भी तो 90 बनेगा। तो जब सेंटर पे 90 बनेगा, इसका मतलब है कि दोनों लाइन पैरेलल होगा। लेंथ ऑफ टीबी, लेंथ ऑफ टीबी कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ टीबी, ओके। सो देखो, तो ये अगर तुम बड़ा वाला सर्कल की बात करोगे तो बाहर वाला पॉइंट से पीटी और क्यूटी, ये दो है जो लेंथ ऑफ इक्वल होता है, तो टीपी इक्वल टू टी क्यू। ठीक है, सो टीपी, इसमें एक लेंथ दिया हुआ था ना, टीपी दिया हुआ है, तो टीपी को टी क्यू भी हम लोग लिख सकते हैं। तो मतलब यहां से टीबी का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो टीबी बराबर कितना हो जाएगा? टी क्यू माइनस टीबी, नहीं, टी क्यू माइनस बी क्यू होगा ना, टी क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, तो टी क्यू कितना है? टी क्यू 80 है, तो 80 माइनस 35, तो क्या आंसर हो जाएगा? 5 एंड 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ एम एन यहां से आप एम एन भी उसी तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन आपको अप्रोच करना था, 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, सो 5 4 जा 20। तो सारा सेक्शन डी और ई का क्वेश्चन हमने करवा दिया है। अब उसके बाद चलते हैं सेक्शन सी की ओर। तो सेक्शन सी में देखो, सेक्शन सी में कहां से स्टार्ट है? स्टार्ट तो वहां से है, बट लास्ट से हम चलते हैं क्वेश्चन। तो लास्ट से ये देखो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया हुआ है, ये सारा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। देखो, ये एक सर्कल है, इसमें रेडियस है, सेंट्रल एंगल थीटा दिया हुआ है, तो आपको क्या पूछ रहा है यहां से? रेडियस इज द परपेंडिकुलर ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ओ ए बी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5.6 सेंटीमीटर इज दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क। सो बस यू हैव टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ एन आर्क 2 पाई आर थीटा बाई 360। सो यहां से निकाल सकते हो, और उसके बाद जब निकाल लोगे तो वहां से थीटा का वैल्यू भी निकाल लोगे। देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आर एस अग्रवाल बुक में दिया हुआ था और हमने करवाया था आपको। क्या करोगे, इसको सबसे आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? तो ये इस वाले टर्म को, सिमिलर टर्म को वन साइड ले लो और अनदर टर्म को एक साथ। तो देखो, 1 बाई सेक माइनस 2 tan x है, तो इसको इधर ही रहने दो, 1 बाई सेक एक्स माइनस tan x। ठीक है, और माइनस 1 बाई सेक एक्स प्लस tan x को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा? प्लस 1 बाई सेक एक्स प्लस tan x इक्वल टू, ये 1 बाई कॉस एक्स ऑलरेडी है, और माइनस 1 बाई कॉस एक्स को उधर भी लेके चले जाओ, तो 1 बाई कॉस एक्स एंड प्लस 1 बाई ऑल्सो कॉस एक्स हो जाएगा। तो बस यहां से एलसीएम इसको ले लो। तो देखो, सेक एक्स माइनस tan x और सेक एक्स प्लस tan x दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर, जिसका वैल्यू 1 होगा, और ऊपर में प्लस माइनस tan x कैंसिल हो जाएगा, तो सेक एक्स प्लस सेक एक्स 2 सेक एक्स हो जाएगा। और आरएचएस में अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो cos x, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 बाई cos x, जिसको हम लोग 2 सेक एक्स भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द, देखो 2 लाइन में खत्म हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इसके पहले वाला सेक्शन सी में और क्या क्या है देखो। इसमें आप देखो, ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट बुक्स में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें प्रॉब्लम हुआ होगा। देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या क्वेश्चन में घुमाया? द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर आर 5√2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ओके, मतलब ये देखो, ये एक कोण है, तो यहां से ये है तुम्हारा 5√2, ये अंदर वाला जो स्फीयर है, और बाहर वाला का रेडियस मतलब इतना और प्लस इतना। मतलब अगर मान लो कि अंदर वाला को स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं तो 5√2 है, और कैपिटल आर मींस बड़ा वाला स्फीयर, तो वो है तुम्हारा 10। ठीक है,
ए कोन ऑफ हाइट 5√7, मतलब इस कोन जो रखा हुआ है इसका हाइट दिया हुआ है 5√7, ठीक है, और रेडियस 5√2, मतलब जो स्फेरिकल का रेडियस है वही सेम रेडियस आपका कोन का भी है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ पाई। टोटल सरफेस एरिया पाई के टर्म में पूछ रहा है, और √2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि 1.4 लेना है। देखो इजी है, कैसे बनाओगे तो देखो पहले इस कोन का रेडियस और हाइट दिया हुआ है, तो पहले स्लैंट हाइट निकाल लो। तो स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, तो स्लैंट हाइट अगर आप निकालोगे तो LH² प्लस R², तो हो जाएगा 5√7 इसका स्क्वायर एंड प्लस 5√2 स्क्वायर। तो इसका स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 7 जा 175 एंड प्लस 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, और इसका ओवरऑल रूट तो 2 to 5 का रूट अंडर स्क्वायर रूट, तो मतलब 15 आ जाएगा। तो इसका स्लैंट हाइट आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो बाहर वाला आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया। तो अगर आउटर का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल R² प्लस इनर वाला का अगर निकालोगे हेमिस्फीयर का तो 2 पाई R² स्मॉल R², ठीक है, एंड प्लस ये कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का, तो पाई RL, एंड प्लस ये देखो ये जो बीच में ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसका भी निकालना पड़ेगा। तो ये कैसा बन रहा है, ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बन रहा है। देखो ये एक सर्कल है, इसके बाहर एक और सर्कल है, तो ये जो पार्ट है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, पाई इंटू कैपिटल R² माइनस स्मॉल R²। बस अब इसमें आपको पाई को कुछ नहीं करना है, पाई को जस्ट कॉमन ले लेना है, और फिर R और L जो भी है वैल्यू ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है, आप यहां से आराम से पाई के टर्म में आंसर निकाल सकते हो। ओके चलो उसके बाद देखो 28 नंबर क्वेश्चन में देखो कितना आसान है। आइदर यू कैन सॉल्व 28 का फर्स्ट आइदर सेकंड, दोनों क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, देखो आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो पहले आइदर यू विल कैलकुलेट x और y and then just you will take out the solution 2 or 3 solution for this equation and just you will plot it on the graph paper, and whenever the two lines are intersecting this is your correct solution for these two equation. Okay, now a bag contains 30 balls, out of m member of balls are blue in color, find the probability that a ball drawn at random from the bag is not blue. नॉट ब्लू का पूछ रहा है, तो टोटल बॉल कितना है, 30 है। तो टोटल बॉल है 30 और उसमें एम है जो ब्लू है। ओके, तो टोटल बॉल कितना है, टोटल बॉल है 30, ठीक है। उसके बाद ब्लू कितना है, ब्लू है तुम्हारा एम, तो पहले नॉट ब्लू निकाल दो। तो नॉट ब्लू कितना हो जाएगा, तो टोटल में से ब्लू को माइनस कर लेंगे। तो इसका प्रोबेबिलिटी आपको नॉट ब्लू ही का पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस एम अपॉन 30, ये तुम्हारा पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, इफ 6 मोर ब्लू बॉल्स आर एडेड, मतलब 6 और ब्लू को ऐड किया जाता है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल बॉल तो हो जाएगा 30 प्लस 6 मतलब 36 हो जाएगा। ओके, और ब्लू बॉल को ऐड किया गया है, इसका मतलब m प्लस 6 हो गया ये। ओके, सो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग बॉल will be 5/4 times of the probability of drawing ball which is first case। हाँ अच्छा, तो मतलब ये कह रहा है कि इसका प्रोबेबिलिटी ब्लू का निकालो, तो कितना हो जाएगा, m प्लस 6 अपॉन 36, m प्लस 6 अपॉन 36, और ये कह रहा है कि 5/4 टाइम्स है, किसका 5/4 टाइम्स है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल का कितना हो जाएगा, तो ब्लू बॉल m था, स्टार्टिंग में कितना था m, तो m बाई 36, m बाई 36, m बाई स्टार्टिंग में पूछ रहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ब्लू बॉल इन द फर्स्ट केसेस, तो फर्स्ट केसेस में ब्लू कितना था m और टोटल था 30, तो मतलब 5m/30 हो जाएगा। अब अगर इसको आप बस इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करोगे,
हमने सॉल्व इसको किया है, m का वैल्यू 12 आएगा आंसर। ओके, सो 29 नंबर भी कंप्लीट हो गया। ये तो ऑलरेडी कराया हुआ है, इसके पहले वाला पार्ट में देख लो। अब एक सेक्शन बी बच गया, ये भी आसानी क्वेश्चन है। ये देखो, प्रूव दैट 2 + 3√5 इज इरेशनल। ये तो हर स्टूडेंट देख के खुश हो गया होगा, बहुत आसान है। बस इसको इरेशनल को रेशनल मान लो, और उसके बाद रेशनल को पी बाई क्यू या ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके बाद रेशनल को वन साइडेड, इरेशनल को वन साइडेड करके यू टेक द एलसीएम, तो वन साइडेड आपका इरेशनल हो जाएगा और दूसरे साइड रेशनल, तो दैट विल बी कंट्राडिक्शन। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 22 डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया हुआ है, बहुत बार करवाया हुआ है। डायरेक्ट यू विल अप्लाई द थेल्स थ्योरम एंड जस्ट यू कैन कंप्लीट। तो अगर हम इसमें थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ए बी ई ट्रायंगल में चलेंगे तो डीएफ जो है वो पैरेलल दिया हुआ है ए का, तो बी एफ अपॉन एफ ई क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर बड़ा वाला ट्रायंगल में चलेंगे तो ए जो है, ए नहीं, ए सी और डीई है, डीई और ए सी, तो यहां से क्या हो जाएगा, बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी इक्वल टू बीडी अपॉन डी ए, बीडी अपॉन डी ए। अब देखो दोनों इक्वेशन में क्या हो रहा है, दोनों का आरएचएस सेम है, तो एलएचएस सेम कर लो। तो देखो जो एलएचएस सेम करना है वही आपको टू प्रूफ में दिया हुआ है, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 23 आराम से बना सकते हो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें आपको रियल एंड इक्वल्स रूट्स के लिए कह रहा है, तो आपको यहां से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू p माइनस क्यू, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा q माइनस आर, और c का वैल्यू हो जाएगा r माइनस पी। तो आपको क्या करना है, d का वैल्यू 0 बराबर करना है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और यहां से जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास यही तुम्हारे पास आ जाएगा q प्लस आर इक्वल टू 2p। इजी है, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आरएस अग्रवाल में हमने करवाया हुआ था। चलो नेक्स्ट 24 में क्या करा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको 1/α² प्लस 1/β² निकालना है। इजी है, बस जस्ट यू कैन कैलकुलेट अल्फा प्लस बीटा वैल्यू एंड अल्फा इनटू बीटा वैल्यू, एंड नाउ यू टेक द एलसीएम, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां इसको एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर एंड माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर मींस अल्फा बीटा द होल स्क्वायर। बस यहां से अल्फा बीटा और अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद एक दो क्वेश्चन और बच गया है, इसको भी करा ही देते हैं, 5 मिनट 10 मिनट और लगेगा। ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हमने करवा दिया है, अब आपको समझना है कि क्वेश्चन इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था। चलो एक ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन दिया हुआ आइडेंटिटी से, ये है क्या, 1 प्लस साइन ए एंड अपॉन 1 माइनस साइन ए एंड ओवरऑल रूट है, तो इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। 1 प्लस साइन ए, जस्ट वी विल मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय 1 प्लस साइन ए, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, और नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए and overall root. So just 1 plus sine a can be outside the square root, so 1 plus sine a and 1 minus sine square a can be written as cos square a, so square से root cancel तो cos a, तो ये तुम्हारा वैल्यू बचेगा। जस्ट यू विल सेपरेट देम, तो 1 by cos a इक्वल टू sec a एंड प्लस sin a by cos a इक्वल टू tan a, तो sec a प्लस tan a, और यही तुमको लाना था sec a प्लस tan a। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी इसका आसान ही था, जस्ट cos स्क्वायर 30 √3/2 वैल्यू रख दो, और cos स्क्वायर 30 का वैल्यू रख दो, और tan 60 का वैल्यू रख दो, आसानी से बना सकते हो। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन एवरीवन। नाउ जस्ट आई एम गिविंग यू द मोबाइल नंबर, so just you can consult the photon classes 8877 and then 33367 तो ये हमारे आपके पास एक नंबर है। अगर आपको 9th-10th क्लास ज्वाइन करना है और आइदर 11th-12th ऑल्सो, so just you can consult this number
8877773367। ओके, सो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू। नन सर कहाँ है? नन सर, नहीं नहीं, नन सर।